Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockhill BBA College, Wapen. I'm going to teach a financial management subject, and we will continue our chapter that is what leverage. So today in this session, we will discuss a third type that is what combined leverage. We already discussed about the operating leverage, then financial leverage, and third is what combined leverage. So what is combined leverage? Now, first of all, operating leverage has its effect on operating risk and it is measured by the percentage change in EBIT due to percentage change in the sales. इट मीन्स ये ऑपरेटिंग लिवरेज हम लोग ने स्टडी कर लिया, ये क्या मेजर करता है? दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग रिस्क. एंड हाउ इट इज मेजर्ड के जैसे सेल्स में चेंज होगा, सो व्हाट इज इफेक्ट ऑन एबिट? That is what it measured by the percentage change in EBIT due to percentage change in the sales. That is what operating leverage. Likewise, the financial leverage. Now, the financial leverage has its effect on financial risk and it is measured by the percentage change in EPS due to percentage change in EBIT. Okay, so financial leverage measure the financial risk and वो क्या explain करता है कि जैसे एबिट में चेंज आएगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन ईपीएस. ओके, सो इट मेजर द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द एबिट. Since both this leverage are closely concerned with the firm's ability to cover fixed charges. Now here fixed charges कौन सा है? हम लोग ने ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स चार्जेस कौन सा पढ़ा? दैट इज व्हाट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट in the case of what operating leverage. And financial leverage में fixed charges क्या था? That is what fixed financial cost, that is what interest on debenture, that is what dividend on the preference shares. Okay, in case of what financial leverage. Okay, so both this type of leverage, that is what operating leverage and the financial leverage, are closely concerned with or connected with the firm's ability to cover fixed charges. यानी फर्म्स की एबिलिटी क्या है इन ऑर्डर टू कवर द फिक्स चार्जेस. तो ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स चार्जेस कौन सा है? दैट इज व्हाट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. एंड फाइनेंशियल लिवरेज में फिक्स चार्जेस कौन सा है? दैट इज व्हाट फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट. ओके, सो इफ they are combined together, the result is what? Total leverage, and the risk is associated with what? Combined leverage. In short, combined leverage is nothing but combine of both this type of leverage, that is operating leverage and the financial leverage. It is measured as what? Total leverage. It is measured as what? Combined leverage. Okay, so definition of combined leverage क्या है कि combined leverage may be defined as what? Firm's ability to use fixed operating cost and fixed financial charges to magnify the effect of change in sales on its earning per share. अल्टीमेटली जैसे फर्म की एबिलिटी क्या है इन ऑर्डर टू यूज द फिक्स कॉस्ट, दैट इज व्हाट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन अर्निंग पर शेयर. यानी कंबाइंड लिवरेज क्या मेजर करता है कि जैसे सेल्स में चेंज आएगा, व्हाट इज इंपैक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर. ओके, एंड सेल्स में चेंज आने से फर्म की एबिलिटी क्या होगी इन ऑर्डर टू यूज द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन द अर्निंग पर शेयर. इन शॉर्ट, ये कंबाइंड लिवरेज क्या मेजर करेगा कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन ईपीएस ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? Now, formula is used for calculation of combined leverage just like operating leverage and financial leverage. So, combined leverage is nothing but operating leverage multiply with financial leverage. Okay. So, combined leverage CL is what? Operating leverage का formula हम लोग ने पढ़ा, that is what? Contribution divided by EBIT multiply financial leverage का formula पढ़ा, that is EBIT upon EBT. So, here EBIT cancel. सो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स. क्लियर? नाउ मेजरिंग डिग्री ऑफ
कंबाइन लिवरेज, अभी आपको डिग्री मेजर करना है, जस्ट लाइक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. सो डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज इज व्हाट? DCL इज व्हाट? DOL इज व्हाट? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज and DFL यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. सो डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज इज व्हाट? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू मल्टीप्लाइंग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. So degree of combined leverage is what? Now degree of operating leverage का फॉर्मूला आपको पता है. That is what? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Multiplication. Degree of financial leverage का फॉर्मूला क्या है? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. So percentage change in EBIT, percentage change in EBIT cancel हो जाएगा. ओके, सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. इट मींस डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मेजर के सेल्स में कितना परसेंटेज चेंज होगा, दैट विल इफेक्ट ऑन चेंज इन ईपीएस. क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. आया समझ में? सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज. दोनों का फॉर्मूला लिखा, एबिट एबिट कैंसल, सो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. ओके, एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में भी ऐसा ही कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. जैसे फॉर्मूला डाला, चेंज इन एबिट कैंसिल हुआ, सो बचा क्या? चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स. सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मेजर परसेंटेज चेंज इन सेल्स इफेक्ट ऑन परसेंटेज चेंज इन द ईपीएस. क्लियर? सो हम लोग एक प्रैक्टिकल सम्स कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ फॉर्मेट यूज करना है. नाउ फॉर्मेट जो हम लोग ने पढ़ा, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मेट एंड कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मेट, तो ये एडिशन ऑफ दिस, दैट इज व्हाट? कंबाइंड लिवरेज फॉर्मेट. सो पर्टिकुलर एंड अमाउंट. सो फर्स्ट क्या आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, तो यहां तक का फॉर्मेट किसका हुआ? ऑपरेटिंग लिवरेज का. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया. नाउ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स. माइनस करेंगे टैक्स रेट, तो क्या मिलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स. माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. डिवीजन, डिवाइड करना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो व्हाट वी कैन गेट? अर्निंग पर शेयर. इन शॉर्ट, यहां से कौन सा फॉर्मेट बन गया? फाइनेंशियल लिवरेज का. यहां तक ऑपरेटिंग लिवरेज एंड यहां से फाइनेंशियल लिवरेज. कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, दैट इज व्हाट? कंबाइंड लिवरेज. सिंपल सा फॉर्मेट है. कैसे याद रखना है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, तो अर्निंग बिफोर आईटी, दैट इज व्हाट? ईबीआईटी. ईबीआईटी में से पहले माइनस करना है इंटरेस्ट, तो क्या होगा? ईबीटी. ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स, तो क्या होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फर्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड पे कर देना है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर देना है, दैट इज व्हाट? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, तो क्या मिलेगा? अर्निंग विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, एंड डिवाइड करना है इक्विटी शेयर्स का नंबर, दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो हमको क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर. ओके, सो कंबाइंड लिवरेज क्या मेजर करेगा? सेल्स में क्या चेंज आएगा, दैट विल अल्टीमेटली इफेक्ट ऑन ईपीएस. क्लियर? चलो एक सम्स लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. ओके, नाउ हियर शेयर कैपिटल इज गिवन 5 lakh consisting of 50,000 shares of rupees 10 each. So 50,000 shares यानी नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है. 10 इज व्हाट? उसकी प्राइस है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज व्हाट? 5 lakh rupees. Then sales 10 lakhs, variable cost 60% on sales, fixed operating cost यानी fixed cost only rupees 2 lakhs,
फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है? इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस क्या है? 1,00,000 है। इग्नोर टैक्स रेट, टैक्स रेट को कंसिडर नहीं करना है, इग्नोर द टैक्स रेट। कैलकुलेट चेंज इन ईपीएस एज अ रिजल्ट ऑफ 5% चेंज, दैट इज व्हाट इंक्रीज इन सेल्स। ओके, हमें क्या मेजर करना है कि ईपीएस में क्या चेंज आएगा बिकॉज ऑफ 5% इंक्रीज इन सेल्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हमारा क्वेश्चन है खाली। ओके, क्लियर? चलो अभी हम लोग सम्स कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना कि टोटल शेयर कैपिटल 5 लाख से, सेल्स 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑन द सेल्स, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस 1 लाख, टैक्स रेट इग्नोर करना है, कैलकुलेट करना है चेंज इन ईपीएस एज ए रिजल्ट ऑफ 5% चेंज इन द सेल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज चाहिए ना, इसीलिए ऑलवेज चेंज तो लेना ही पड़ता है। खाली करना है कंबाइंड लिवरेज तो डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस डेटा हो जाता है। चलो तो फॉर्मेट, आपको अभी फॉर्मेट आता है। सो यहां पे पर्टिकुलर्स लिखा, एक्चुअल एंड चेंज, एक्चुअल एंड चेंज। सो पर्टिकुलर्स आपको पता है ना कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस इंटरेस्ट तो अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स रेट तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स, सो व्हाट वी कैन गेट? अर्निंग पर शेयर। क्लियर? चलो एक्चुअल, फिर बाद में क्वेश्चन में बोला है दैट इज व्हाट? कैलकुलेट चेंज इन ईपीएस। ईपीएस में क्या चेंज आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ 5% चेंज, दैट इज व्हाट? इंक्रीज इन सेल्स। ओके, तो मेरा चेंज क्या लेना है? 5% इंक्रीज इन सेल्स। चल फर्स्ट सेल्स, सेल्स कितना दिया? 10 लाख। सेल्स कितना दिया है? 10 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ना वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% ऑन द सेल्स, तो 1 लाख का 60% तो कितना आएगा? 6 लाख, सॉरी 10 लाख का 60% क्या आएगा? 6 लाख। तो कंट्रीब्यूशन क्या मिलेगा? 4 लाख। फिक्स कॉस्ट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट? फिक्स कॉस्ट, एंड द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर? सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 2 लाख रुपीस है। तो क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो 4 लाख माइनस 2 लाख दैट इज व्हाट? 2 लाख हमको ईबीआईटी मिला, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट यहां पे क्या होगा? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कितना? 1 लाख। तो हमें क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स दैट इज व्हाट? ईबीटी। सो ईबीटी क्या हो जाएगा? 1 लाख। टैक्स रेट कुछ लेना नहीं, इग्नोर यानी 0, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा? 1 लाख। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, 0। सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? 1 लाख। क्लियर? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है कितना? 50,000। सो 50,000 इज व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स। सो अर्निंग पर शेयर इज व्हाट? 2 रुपीज। अर्निंग पर शेयर कितना आया? 2 आया। दैट इज व्हाट? 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। क्लियर? नाउ अभी हमको क्या दिखाना है? कैलकुलेट चेंज इन ईपीएस एज अ रिजल्ट ऑफ 5% चेंज इन सेल्स, दैट इज व्हाट? 5% इंक्रीज इन सेल्स। तो हम लोग यहां पे वर्किंग नोट में सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो वर्किंग नोट में क्या करना है? दैट इज व्हाट? चेंज 5% इन सेल्स करना है ना। नाउ एक्चुअल सेल्स कितना दिया? एक्चुअल सेल्स 10 लाख दिया। 10 लाख का 5% निकालना पड़ेगा, कितना आएगा? 50,000। ओके, देयरफॉर हमारा सेल्स अब क्या बन जाएगा? 10 लाख इंक्रीज यानी प्लस 50,000, तो सेल्स क्या बन जाएगा? 10 लाख 50,000। आया समझ में? सो हियर
चेंज सेल्स चेंज कितना हुआ 10,50,000. वेरिएबल कॉस्ट, सो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60%. इट मींस 10,50,000 का 60% निकालना पड़ेगा. दैट इज व्हाट 6,30,000. ओके, सो अमाउंट कितना आएगा 4,20,000. नाउ फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड 2 लाख. तो बचा कितना 2,20,000. एबिट में से इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट भी फिक्स्ड 1 लाख. सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा 1 लाख. टैक्स रेट को इग्नोर करना यानी 0. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया 1 लाख. प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है 0, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स कितना आ जाएगा, सॉरी 1,20,000 है यहां पे 1,20,000 आएगा. ओके, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज व्हाट 1,20,000. सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर इज व्हाट 1,20,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50,000. सो हमारा आंसर आएगा ईपीएस का 2.4. ओके, सो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज कैलकुलेट द चेंज इन ईपीएस. एंड यहां पे ऐसा बोला डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज. ओके, सो बिफोर दैट फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंबाइन लिवरेज, देन आफ्टर डिग्री फाइंड आउट करेंगे. सो कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज व्हाट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. ओके, चलो कंट्रीब्यूशन कितना है ना, ऑलवेज लिवरेज जो लिवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोले ना तो एक्चुअल डेटा में हमको देखना है. ओके, सो यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना आया 4 लाख डिवाइडेड बाय ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख. ओके, सो कंबाइन लिवरेज कितना आया 4. सो नेक्स्ट डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, दैट इज व्हाट डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज. उसका फॉर्मूला DCL. नाउ डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज हम लोग ने फॉर्मूला देखा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ओके, तो अभी हमको वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. ना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, सो फॉर्मूला का यूज करना है चेंज इन ईपीएस माइनस एक्चुअल ईपीएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल ईपीएस. ओके, सो चेंज इन ईपीएस कितना आया 2.4, एक्चुअल 2, सो एन इंटू 100 करना रह गया इंटू 100. क्लियर, सो 2.4 माइनस 2 यानी 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100. ओके, तो आपका आंसर आएगा 0.2 इंटू 100, दैट इज व्हाट 20% आएगा ईपीएस में चेंज. ओके, सो चेंज इन ईपीएस इज व्हाट 20% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ओके, सो यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज व्हाट चेंज माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल. एक्चुअली आपको पता ही है यहाँ पे दे ही दिया है 5% चेंज इन सेल्स है, बट हम लोग फाइंड आउट कर लेते मिस्टेक ना हो जाए. तो चेंज इन सेल्स तो कितना आया चेंज 10,50,000 माइनस एक्चुअल 10 लाख डिवाइडेड बाय एक्चुअल 10 लाख इंटू 100. तो जैसे आप क्रॉस माइनस सब करेंगे ना तो 5% आएगा. ओके, सो 5% सेल्स, सो रिजल्ट डिग्री ऑफ लिवरेज कितना आएगा 4. ओके, सो कंबाइन लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज आंसर इज व्हाट राइट. समझ में आया, ये टाइप के सम्स हम लोग को ये टाइप के सम्स एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा कैलकुलेट करना है. क्लियर, चलो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभी सब सम्स कैलकुलेट करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टाइप के. क्लियर, बाय.